माइक्रोबियल इंटरेक्शन में सबसे पहले अपन ने माइक्रोब इंटरेक्शन पढ़ा था, जिसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन पढ़ा था। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन की। अर्थ इज रिचली पॉपुलेटेड विद द प्लांट एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन क्लोजली एसोसिएशन विद दैम, ऑल्दो मैनी माइक्रोबियल एक्टिविटीज आर डिटरमिनेटेड टू द प्लांट ग्रोथ। हाउएवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो बेनिफिटेड टू द प्लांट। सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे रूट माइक्रोब इंटरेक्शन की। तो प्लांट रूट हैव अ लॉट ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम द सेंट्रल रूट एंड द बैक्टीरिया may become localized on the root surface. In general, plant benefit from the two types of the micro-plant interaction. First, highly specialized interaction where there is considerable specificity found in the mutualist activity and the commensalism resulting from the nutrient secretion from the plant when bacteria and the fungus grow in close proximity to the root. The three best characterizing of the symbiotic system are the fungus root system, जिसको mycorrhiza कहते हैं, root bacteria root nodule system और cyanobacteria root system. तो सबसे पहले अपन प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन में, रूट माइक्रोब इंटरेक्शन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे माइकोराइजा, जो कि फंगस रूट एसोसिएशन होता है। माइकोराइजा आर दी फंगस रूट एसोसिएशन फर्स्ट डिस्कवर बाय द एल्बर्ट फ्रेंक in 1885. The term mycorrhiza comes from a Greek word meaning the fungus and the root. These microorganisms contribute to the plant functioning in the natural environment, agriculture and reclamation. The root of about 95% of all kind of vascular plant are normally involved in symbiotic association with mycorrhiza. Symbiosis begins with the fungal spore germinating and emerging thread-like structure called hyphae enter the epidermis of the plant root. After colonization of the root, the fungus sends out a vast network of hyphae throughout the soil to form a greatly enhanced abruptive surface area. This results in improved nutrient association and uptake of the plant root, particularly environmental phosphorus, zinc, magnesium, copper and the water. In return, the plant provides carbohydrate for the fungus. Rhizospheric interaction of terrestrial fungus are influenced by the number of microorganisms, type of microorganism and specifically plant root executes. Mycorrhiza is mainly two types, endomycorrhiza and ectotropic mycorrhiza. Growth on the exterior of the root is the characteristics of endomycorrhiza and ectotropic mycorrhiza, while growth inside the root is attributed endomycorrhiza or the endotropic mycorrhiza. जो फंगस है वो प्लांट की रूट के अंदर बाहर सर्वाइव कर रही है, अंदर सर्वाइव कर रही है, उसके हिसाब से माइकोराइजा दो टाइप में डिवाइडेड होता है, एक्टो और एंडो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टो माइकोराइजा की, जो कि फाउंड होता है ऑन दी ट्री रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, वुडी एंजियोस्पर्म्स एंड फंगल पार्टनर्स जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो होते हैं नॉन सेप्टे हाइफे फंगस के। जो मेजोरिटी होती है उस फंगस को बिलोंग करती है एग्रीकल्स की ऑफ दी हिमेनोमाइसिटीज अंडर बेसिडोमाइकोटनिया फैमिली का। एक्टोमाइकोराइजा जिसको कॉमनली अपन शीटिंग माइकोराइजा भी कहते हैं, दी फंगस एंटर दी कॉर्टेक्स, वो कॉर्टेक्स के अंदर जाती है और ग्रो करती है बिटवीन दी प्लांट सेल्स के अंदर और फॉर्म करती है हार्टिंग नेट, बट नेवर गोज इनसाइड दी एंडोडर्मिस और स्टिट, और वो एंडोडर्मिस के अंदर कभी नहीं जाती फंगस। द फॉर्म अ मेंटल ऑफ वेयरिंग थिकनेस सच एक्टोमाइकोराइजा इंक्लूड द सिनोकोकम ambetia from irregular structure that they are easily to recognize. The fungal hyphae extended into the soil where they substitute where they take the phosphorus, nitrogen, sulfur, calcium, zinc, iron, numerous minerals for the fungal growth. When the plant become mineral deficient or when the fungal cells die, the appropriate iron will pass on the root. ये स्ट्रक्चर है एक्टोमाइकोराइजा का, जो कि रूट के ऊपर है, पाइन ट्री के ऊपर अगर अपन देखें तो ये जो ट्री के ऊपर एक्टोमाइकोराइजा हमारे प्लांट के जो रूट के जो कॉर्टेक्स वाले एरिया में अंदर तक जाती है, पर उसके ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करती। एक्टो मतलब उसके सरफेस पे उसके बाहर तक रहना। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एंडोमाइकोराइजा की। इन दिस एसोसिएशन ऑफ द फंगल हाइफे पेनिट्रेट द आउटर कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द प्लांट रूट वेयर दे ग्रो इंट्रासेलुलरली एंड फॉर्म द कॉइल्स, swelling or minute branches. The fungus penetrate the root with the growth between the epidermis cell and through the root hair and invade the cortex cell. Endomycorrhiza, ये जो एंडोमाइकोराइजा ये फाउंड होता है हर्बिसियस प्लांट्स के अंदर और इंक्लूड द लोअर वेस्कुलर प्लांट्स सच एज द फर्न्स एंड द ब्रायोफाइटा। वेस्कुलर एब्रिकुलर माइकोराइजा, इसको वैम कहा जाता है, इज अ टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन वेयर बोथ वेसल्स एंड एब्रिकल्स आर डेवलप्ड टुगेदर. Vascular abricula mycorrhiza is far by the commonest of the all mycorrhiza and have been reported more than 90% of the land plant. अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये प्लांट का हमारा रूट का स्ट्रक्चर है, वैम का स्ट्रक्चर अगर अपन बताते हैं तो ये वेसल्स के अंदर ये एब्रिकल्स में यहाँ तक ये पेनिट्रेट कर जाता है फंगस माइकोराइजा की।
ठीक है। कंपैरिजन की अगर अपन बात करें एंडो और एक्टो की, तो एक्टो के अंदर क्या हो रहा है, हाइफे डू नॉट पेनिट्रेट द रूट सेल के अंदर हाइफे पेनिट्रेट नहीं कर रही। पर वहीं अगर एंडो की बात करें तो जो हाइफे है वो पेनिट्रेट कर रही है रूट सेल्स के अंदर। और फिर नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं रोल ऑफ माइक्रोराइजा इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में इसका क्या रोल है। द माइक्रोराइजा एसोसिएशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइटोनियस ब्रांचिंग एंड द प्रोफ्यूज द रूट ग्रोथ एंड हेंस एंड द प्लांट ग्रोथ। एक्टोट्रॉफिक माइक्रोराइजा हेल्प इन द अपटेक ऑफ द मिनरल ions and also act as a reservoir. They also help in the absorption of the nutrient in the nutrient efficient soil. The mycelium association help in the absorption of nitrogen, calcium, phosphorus, zinc, iron, sodium and others. Mycorrhizal association is obligatory for the germination of orchid seed. Mycorrhiza growth in orchids, that is rhizotonia, repens with the orchid militaries tumor tissue, cause the synthesis of phytoalexin, orchidol and hydrocerin. Both the compound act as a barrier to protect the infection by other pathogens. Inoculation of the worm as biofertilizer provide a distant possibility for uptake of phosphorus in the phosphorus deficient soil. Mycorrhiza play an important role to establish the forest in unfavorable localization, barren land, vast land, etc. The application of mycorrhizal fungus in the forest bed enhance the formation of the mycorrhizal association that prevent the entry of the fungus and the root for pathogens. This method is very much effective in the root of the Pinus classica against the Phytophthora chlamydia infection. Mycorrhiza mix the nitrogenous compounds such as nitrate, ammonium, etc. is available to the plant, thus help in the plant growth and especially in the acid soil. अब बात करते हैं, ये तो था हमारा फंगस रूट एसोसिएशन। अब बात करते हैं बैक्टीरियम रूट नोड्यूल सिस्टम, और इसमें साइनोबैक्टीरियम रूट सिस्टम की बात करेंगे। इसको क्लोराइडल रूट कहते हैं, जिसके अंदर अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप ऑफ द एरियल प्लांट सरफेस विद द माइक्रोराइजम विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इसमें बात करेंगे फेलोस्फीयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ वाइड वैरायटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन इन द एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट कॉल्ड फाइलोस्फीयर. These include the microorganisms that have interaction with the leaf and sometimes stems at various stages of the development. The plant leaves and the stem release the organic compound, thus they can lead to massive development of the microbes. Some important of phyllosphere bacteria are the Cyanomonas, Pseudomonas, Methylobacterium. The genera present on the plant leaf and the stem include the Spinogomas, especially occupied to survive with the high level of UV irradiation occurring on these plant surfaces. Phyllosphere microorganisms play important role in the protection and possibly harm to the plant. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड through the agency of the living organism called biological nitrogen fixation. The process is carried out by the two main types of microorganisms, those which are living in close symbiotic association, and while other those are free living or non-symbiotic. Biological nitrogen fixation is a process whereby the atmospheric nitrogen is reduced to the ammonia in the presence of nitrogenase enzyme. Nitrogenase is a biological catalyst found naturally only in certain microorganisms such as symbiotic rhizobium of Frankia के अंदर, और free living के केस में Azorhistosphaerellum और Azectobacter और blue green algae के अंदर. Nitrogen fixer among the earth's surface only some prokaryotic like bacteria and cyanobacteria can fix the nitrogen, atmospheric nitrogen. They are called nitrogen fixers or diazotropes. Diazotropes may be symbiotic and asymbiotic, that is free living. Symbiotic nitrogen fixing bacteria. Rhizobium is an aerobic green gram-negative nitrogen fixing bacterial symbiote of the leguminous plant. Symbiacia rochestea has rhizobium in the root nodules and aerorhizobium in the stem nodules. Frankia is a symbiotic in the root nodules of many non-leguminous plants like Cassiogyrium alanius. Parasophonia, a typical genus in the Cancibinium, also able to interact with the rhizobia and form nitrogen fixing nodules. Several species of rhizobium live in the soil but are unable to fix the nitrogen by themselves. They do so only as a symbiotic in association of the root of the legume. Several other genera are also able to form the nitrogen fixing nodules with the leguminous plant, and these are Allorhizobium, Azorhizobium, Baradirhizobium, Mesorhizobium, Cynorhizobium.
नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इन्वॉल्व द मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन द फ्री लिविंग सॉइल माइक्रोराइजा free living soil rhizobium and the root of the host plant. The root of the young leguminous plant secrete a group of chemical attractants like flavonoids and vitamins. In response to these chemical attractants, specific rhizobial T cells migrate towards the root hairs and produce the nodes that reduce nodulation formation. The node factor formed on the bacterial surface bind to the lectin protein present on the surface of the root hair. This lectinoid factor interaction induce the growth and curling of the root hair called rhizobium around the rhizobium. At this region wall degrade in response to node factor and rhizobium enter the root hair. Invasion of the plasma membrane called infection thread, and the infection thread filled with dividing rhizobia elongated through the root hair and later branch to the reach different cortical cell, and the infected cortical cell divided. जैसे कि इसमें फर्स्ट की बात करें तो जैसे कि ए वाले डायग्राम में जो एक रूट सेल है जो कि कुछ केमिकल सिक्रीट कर रही है, फ्लेवोनॉइड जो कि इंड्यूस कर रही है, उसके आसपास की सॉइल में राइजोबियम है तो वो उसको इंड्यूस कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है। जैसे ही वो उसके पास आता है तो जो राइजोबियम है वो नॉड लाइक जीन, जो नॉड फैक्टर जो जीन्स है उसको रिलीज़ करता है। जैसे ही वो उसको रिलीज़ करता है तो जो रूट हेयर की जो डिफॉर्मेशन है उसमें कट हो जाता है और जो बैक्टीरियल का अटैचमेंट होने लग जाता है। धीरे धीरे फिर वो बैक्टीरियल का अटैचमेंट वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू और उसके अंदर राइजोबियम का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखोगे लेगुमिनस प्लांट प्री प्लांट के केस में तो ये इसकी जो रूट है उसमें जो राइजोबियम अटैच हो जाता है रूट हेयर्स पे, उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है जिससे बैक्टीरिया रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट करता रहता है और जैसे ही वो रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट करता रहेगा अंदर बैक्टीरियोइड्स बना देगा और रूट सेल को क्या कर देगा, एनलार्ज कर देगा जिसकी वजह से वो एक नोड लाइक एक गोल से आकार में नोड्स लाइक का फॉर्मेशन जो एनलार्ज जो रूट सेल से वो नोड्यूल के फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगी और उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। बेसिकली जो राइजोबियम है उसके अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ये कैसे करते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो द नोड्यूल सर्व एज अ साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट कंटेन ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल सच एज द एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड नाइट्रोजनेज and like hemoglobin, that is the leguminous hemoglobin, the nitrogenase has a two compound, nitrogen एंजाइम के दो कंपाउंड होते हैं, मोबेलियम आयरन प्रोटीन जिसको मोलेब्डोफेरेडॉक्सिन और एफी प्रोटीन जिसको एजोफेरेडॉक्सिन कहते हैं। ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है कैटालाइज करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, डाई नाइट्रोजन को, किसमें, अमोनिया के अंदर। ये जो अमोनिया है इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो इसके लिए इसको दो इसके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है और 16 ATP की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया के अंदर। ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन द फ्री डाई नाइट्रोजन फर्स्ट बाउंड टू द मोबेलियम MOFE protein and is not released until completely reduced to ammonia. The reduction of dinitrogen is a stepwise process होता है जिसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं। तो सबसे पहले डाइनाइट्रोजन कन्वर्ट होता है हाइड्रोजाइन के अंदर और वो हाइड्रोजाइन कन्वर्ट होता है डाइअमाइन के अंदर और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस में इसको टोटल 16 ATP की ज़रूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, जो इसके अंदर एग्जांपल क्या आते हैं, एसेक्टोबैक्टर ब्रांचिकिया जो कि एरोबिक के अंदर होते हैं। एनारोबिक के केस में क्लॉस्ट्रीडियम होता है जो कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है जो कि परफॉर्म करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। डी सल्फोविब्रियो जो कि एक कीमोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। रोडोसोडोपोडिया, रोडोस्पेरुलम और क्रोमेटिन नाइट्रोजन फिक्सिंग फोटो ऑटोट्रोपिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के केस में ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि ये परफॉर्म करती है। एग्जांपल में नॉस्टॉक एनेबीनिया आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली होते हैं क्योंकि ये लीफ क्योंकि कहाँ फाउंड होती है, ये कहाँ रहती है, वाटर लॉगिड सॉइड्स के अंदर वेयर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैन एक्टिवेट। नेक्स्ट अपन बात कर जो फिर शुगर केन और मेज लीफ है उसके अंदर क्लेमाइडोस्पोरियम होते हैं और जो राइस फील्ड के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वो एलोसाइरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया की। तो एनाबिना और नॉस्टॉक की जो स्पीशीज़ है वो कॉमन सिम्बायोटिक होती है लाइकेंस के अंदर, एंथ्रोज, एजोला और साइनिक रूट्स के अंदर। एजोला पिनेटा एक वाटरफॉन है जो कि एमनिया एजोला इस फ्रॉक्स होता है और जो कि राइस फील्ड्स के अंदर जो कि वाटर फॉर्म है। तो बेसिकली जो राइस की जो फील्ड होती है उसमें वाटर लॉग ज़्यादा रहता है तो उस राइस फील्ड के अंदर नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने के लिए जो एनाबिना और नॉस्टॉक की स्पीशीज़ है वो काम में आती है।
प्लांट को नाइट्रोजन की क्या मतलब, प्लांट को नाइट्रोजन की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो हमारा जो डीएनए है उसके अंदर भी काम में आ रही है, हमारे प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में भी काम आ रही है। मतलब बेसिकली जो नाइट्रोजन है हमारी ऑल ओवर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फॉर्मेशन के अंदर काम आती है। तो ये था हमारा प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे एनिमल माइक्रोब इंटरेक्शन की।